یہ جگہ جہاں میں موجود تھا کہاں ہے، کیسی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جو ہوگا کرنے والے موجود ہیں۔ ابھی اتنا ہی سوچا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی، کوئی اور اندر داخل ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ یہ اشرف تھا، بابا پردہ پوش کا وہ ملازم جو ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اندر آ کر اس نے مجھے سلام کیا۔ اشرف تم یہاں؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ ہاں تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کہیں اور نوکری کرتا ہوں۔ نوکری؟ جی، بابا صاحب نے حکم دیا تھا کہ حکیم امتیاز احمد کے ہاں نوکری کروں، تب سے وہیں ہوں۔ پھر اس وقت یہاں کیسے آ گئے؟ بابا صاحب نے حکم دیا تھا، کہا تھا کہ جب تک آپ یہاں ہیں آپ کی خدمت کروں۔ بابا صاحب نے؟ ہاں، اہل ایمان تو بس دنیا سے پردہ کرتے ہیں، ان کے فیض میں کمی نہیں ہوتی۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آئیے آپ کو کچھ وقت یہاں قیام کرنا ہے، میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ بندوبست بھی کر دیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے آئے ہو۔ ہاں، افلاق میرے ساتھ تھا، اس کی مدد سے یہ سب کیا ہے۔ افلاق کی مدد سے واقعی سب کچھ کیا جا سکتا تھا۔ اشرف مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر آیا تھا وہ اس بوسیدہ عمارت کا کمرہ لگتا ہی نہیں تھا۔ ایک دم صاف ستھرا اور فرنیچر سے آراستہ، ملحقہ غسل خانے کے ساتھ۔ اشرف نے کہا الماری میں آپ کے کپڑے موجود ہیں، ایک جوڑا میں نے غسل خانے میں لٹکا دیا ہے، آپ غسل کریں اور کھانا میں لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں چند منٹ گمسم بیٹھا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کافی وقت افراتفری میں گزرا تھا۔ غسل نے تازہ دم کر دیا، شب خوابی کے نرم لباس نے طبیعت کو فرحت بخشی۔ باہر آیا تو منظر ہی الگ تھا۔ اشرف نے دسترخوان بچھا دیا تھا، اس پر کھانا لگا ہوا تھا جس سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں دسترخوان پر آ بیٹھا۔ میں نے اشرف کو بھی کھانے کے لیے کہا تو اس نے شکریہ ادا کر کے بتایا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ کھانا کھا کر آرام سے سو جائیں کیونکہ تھکے ہوئے ہیں، جاگیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی، سورج چڑھ چکا تھا، نماز بھی قضا ہو چکی تھی۔ کہیں سے کوئی آہٹ نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ضروریات سے فراغت کے بعد باہر آیا تو حسب توقع ناشتہ لگا ہوا تھا۔ چائے کی دل نشین خوشبو چائے دانی سے اٹھ رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو اشرف آ گیا۔ تم نوکری پر نہیں گئے اشرف؟ جب تک آپ یہاں ہیں مجھے یہیں رہنا ہے۔ حکیم صاحب سے کہہ کر آئے ہو چھٹی لے لی ہے؟ مجھے کب تک یہاں رہنا ہے؟ کل 10 بجے آپ روانہ ہوں گے۔ چندوسی یہاں سے کتنی دور ہے؟ دلی سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اشرف سے دن میں کئی بار ملاقات ہوئی، نہ جانے کب سے بابا صاحب کی خدمت میں تھا، خود بھی ایک پراسرار شخصیت بن چکا تھا، کبھی کبھی بڑی عالمانہ باتیں کرنے لگتا تھا۔ افلاق کہاں ہے اشرف؟ میں نے پوچھا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں، جب اسے حکم ملتا ہے حاضر ہو جاتا ہے۔ بابا صاحب چاہتے تو تمہاری جگہ اسے دے سکتے تھے، یہ وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ آتش زدہ ہے۔ ہم مٹی کی تخلیق، اللہ نے مٹی کی تخلیق کو اشرف کا درجہ دیا ہے۔ مجھے چندوسی جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہاں، چندوسی اسٹیشن اتر کر آپ کو تانگے میں بیٹھ کر حصے پور جانا ہوگا۔ یہ ایک قصبہ ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کسے میری ضرورت ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ مجھے ایک دم احساس ہو گیا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں۔ ان تمام سوالات کے جواب میں خود بھی حاصل کر سکتا ہوں، لیکن مجھے وقت سے پہلے کچھ معلوم کرنے کی ممانعت ہے۔ بابا صاحب کوئی ذمہ داری کسی کو دے دیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایسے کام وہ اسی کو دیتے ہیں جسے اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ یقیناً بہت اہم انسان ہیں۔ دن میں کئی بار اشرف سے ملاقاتیں ہوئیں۔ دوسرے دن اس نے ناشتے کے ساتھ کئی اخبار سامنے لا کر رکھ دیے۔ ان میں میری تصویروں کے ساتھ بڑی سنسنی خیز سرخیاں جمائی گئی تھیں۔ کسی میں مجھے بڑا دہشت گرد ثابت کیا گیا تھا، کسی میں کہا گیا تھا کہ کوئی بڑا گروہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے جس کی سرگرمیاں بہت پراسرار ہیں۔ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے سپرد میری نگرانی کی ذمہ داری تھی۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی بھاری سیکیورٹی کے باوجود میں کیسے نکل گیا۔
میں نے یہ سب पढ़ा, लेकिन कसम खा कर कहता हूँ कि मेरे जहन में कोई तरद्दुद पैदा ना हुआ, जबकि हर अखबार में मेरी तस्वीरें थीं। 9:15 बजे अशरफ ने कहा, तैयार हो जाएं, मोटर आ रही है। मुझे क्या साथ लेकर जाना है? मैंने सूटकेस तैयार कर दिया है, सफ़र में पहनने वाले कपड़े गुसलखाने में लटका दिए हैं, जाकर बदल लें। कुछ देर में तैयार होकर मैं बाहर आ गया। टूटी हवेली के बाहर एक पुराने तर्ज की कार खड़ी थी, जिसमें अशरफ ने मेरा सामान रखा, फिर मुझे खुदा हाफिज कहा। कार चल पड़ी। ड्राइवर वही था जो कई बार सामने आ चुका था। बिल्कुल खामोशी से वो कार चलाता रहा। तवील अरसे के बाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ड्राइवर ने खुद ही मेरा सूटकेस संभाल कर कहा, आइए। मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी। मेरी आसानी के लिए बहुत कुछ कर दिया गया था। उसने मुझे रेल के एक डब्बे में बिठाकर कहा, ये चंदूसी का टिकट है, तांगे वाला आपको खुद पहचान लेगा। फिर वो कुछ कहे बगैर नीचे उतर गया। मैं खिड़की से उसे जाते देखता रहा। अचानक मैंने एक बात महसूस की। रेलवे स्टेशन पर पुलिस गैर मामूली सरगर्मी में मुलव्वस थी। बेशुमार पुलिस वाले मौजूद थे, उनमें बड़े रैंक वाले अफसरान भी जो काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहे थे। फौरी तौर पर दिल में ख्याल आया कि ये लोग मेरी तलाश में सरगर्दा हैं। कुछ ही लम्हों में 4 पुलिस वाले मेरे डब्बे में आ घुसे। वो एक एक मुसाफिर को गौर से देख रहे थे। मेरी सीट खिड़की के पास थी। मैं पुरसुकून अंदाज में बैठा रहा। बहुत मुश्किल काम था इंसानी फितरत के खिलाफ, लेकिन मैं इसे सरअंजाम दे रहा था। पुलिस वाले मेरे पास भी आए, मुझे देखते रहे, फिर आगे बढ़ गए। रेल काफ़ी देर के बाद चली। यकीनी तौर पर पूरी रेल की तलाशी के बाद इसे रवानगी की इजाज़त दी गई थी। कुछ देर के बाद उसने रफ्तार पकड़ दी। मैं खामोशी से बाहर के मंजर देखता रहा। रास्ते भर कोई ख़ास बात नहीं हुई। दिन की रोशनी थी, इसलिए हर स्टेशन देखता जा रहा था। आखिरकार चंदूसी का बोर्ड नज़र आया। मैंने जल्दी से सूटकेस उठाया और नीचे उतर आया। 2 मिनट के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उस वक्त चूका जब एक आवाज़ सुनाई दी, सलाम शाह जी। पलट कर देखा तो मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा था। लाओ, ट्रंक हमें दे दो, हम ममदू टांगे वाले हैं, उसने कहा और सूटकेस पर झपटा मारा। अरे नहीं ममदू चचा, वजनी है मेरे पास, रहने दो, मैंने कहा। शक्ल से उठाई गिर लगे हैं तुम्हें, लेकर भाग जाएंगे तुम्हारा बॉक्स, वो चिड़चिड़े अंदाज में बोला। अरे नहीं, ये बात नहीं, मैंने तो इसलिए कहा था कि हम उठा न सकेंगे, हैं? हाँ बस यही बात थी, मैंने शर्मिंदा से लहजे में कहा। 30 साल पहलवानी की है, कभी अखाड़े की मट्टी कमर से ना लगी मालिक के करम से। हमारे बगैर हिस्सेपुर में कभी कबड्डी ना खेली गई। मजाल ना हुई किसी माई के लाल की के ममदू को पाला ना छूने दे। बात करे हैं। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। मंदू बाबा बहुत गुस्सावर था। उसने सूटकेस मेरे हाथ से लेकर छोड़ा। मैं तांगे में उसके बराबर बैठ गया। मंदू बाबा ने तांगा आगे बढ़ा दिया। मंदू बाबा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया, जबकि आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा? नसीबुल्लाह ने हुलिया बता दिया था तुम्हारा, बस काफ़ी था। खोजी का काम भी किया है हमने 5 साल। बड़े बड़े मुजरम पकड़ कर दिए हैं पुलिस को। नसीबुल्लाह, मैंने ज़ेरे लब कहा। मेरे इल्म में ये नाम नहीं था, लेकिन मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। जो कुछ है सामने आ जाएगा। तांगे का सफ़र जारी रहा। उस दौरान बाबा ममदू मज़े मज़े की बातें करता रहा। हिस्सेपुर चंदूसी स्टेशन से काफ़ी दूर था। रास्ते के मनाजर भी बहुत अच्छे थे। आखिरकार तांगा हिस्सेपुर में दाखिल हो गया। इसे खालिस गाँव नहीं कहा जा सकता था। हाई स्कूल नज़र आ रहा था। बड़ी सी मस्जिद भी थी। तांगा एक बाजार से गुजरकर मस्जिद के सामने रुक गया। चलो उतरो अब, क्या तांगे में ही जिंदगी गुजार दोगे? ममदू ने कहा और मैं नीचे उतर गया। कितने पैसे दूं ममदू बाबा? बड़ा माल भरा हुआ है, खखाशा बने हुए हो, बात करते हैं, पैसे देंगे हमें, ममदू ने मुंह टेढ़ा करके कहा। उसी वक्त एक नौजवान आदमी मेरे पास आ गया। मंदू ने मेरा सूटकेस नीचे उतार दिया तो नौजवान ने आगे बढ़कर उठा लिया और बोला, आओ शाह जी। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मस्जिद के बराबर वाली गली में दाखिल होकर दाएं तरफ बने एक दरवाजे के सामने रुका। फिर दरवाज़ा खोलकर बोला, आ जाइए।
मैं अंदर दाखिल हो गया। काफ़ी बड़ी जगह थी, कई कमरे थे। नौजवान ने मेरा सूटकेस एक कमरे में रख दिया जहां मसहरी और सोफे पड़े हुए थे। ज़रूरत के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बैतुल खला बाहर लाइन से बने हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? शकूर खान। वो सामने हमारा घर है, वहीं से तुम्हारे लिए खाना आ जाया करेगा। कोई ज़रूरत हो तो कुंडी बजा देना। वो सुनो, नसीबुल्ला साहब कहाँ हैं? पेश इमाम साहब बराबर के गांव गए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। हो सकता है आज ही आ जाएं। अच्छा। इतना पता चल गया था कि वो इस मस्जिद के पेश इमाम हैं। बाकी बातें सीगा राज में थीं, लेकिन सब्र सुकून से काम लेना था। मैंने सूटकेस एक बेहतरीन जगह रखा और फिर उस हुजरे के दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद उस वक्त बिल्कुल खाली थी। वैसे खासी बड़ी और खूबसूरत मस्जिद थी। मैंने मुंह हाथ धोया, कुछ वक्त मस्जिद के दालान में बैठकर गुजारा। फिर एक 12-13 साल का लड़का मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। हुजरे का दरवाज़ा खोल दो भाई जी, चाय लानी है। अच्छा, मैंने कहा। वो मेरे साथ वहीं हुजरे में आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकल गया। फिर वो एक साफ़ सुथरी ट्रे में चाय का सामान लेकर आया। बिस्किट वगैरह भी थे। अभी शाम होने में वक्त बाकी था। मैंने काफ़ी वक्त उसी कमरे में गुजारा। मस्जिद में अजान हुई तो बाहर आकर नमाज पढ़ी। नमाजी बहुत कम थे। लोगों ने मुझे गौर से देखा ज़रूर था, लेकिन किसी ने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा था। रात का खाना शकूर खुद लेकर आया था। ये भी बेहतरीन खाना था। उसने बताया कि पेश इमाम साहब की बहन बीमार हैं, वो उन्हें देखने जाते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे। क्या बीमारी है? मैंने पूछा। बुढ़ापा खुद बीमारी होती है साहब जी। कोई 100 साल की हैं। नसीबुल्ला साहब को उन्होंने ही पाला है। इशा की नमाज के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गया। कुछ देर के बाद नींद आ गई। नाश्ता सुबह ही सुबह मिल गया। दिन को 12 बजे तन्हाई से उकता कर बाहर निकल आया। यूं ही चहलकदमी करता हुआ दूर निकल आया। हाई स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई। शरीर बच्चे बाहर निकल रहे थे। अचानक बच्चों का शोर सुनाई दिया। मेरी नज़रें उस तरफ उठ गईं। मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो भाग रही थी। बच्चे उसे छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे। आसपास इक्का दुक्का दुकानें भी थीं। वहां लोग भी नजर आ रहे थे, लेकिन सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई उन बच्चों को नहीं रोक रहा था। अचानक बूढ़ी औरत के मुंह से चीख निकली। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गई। एक नुकीला पत्थर उसके सर पर लगा था और खून निकल आया था। मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई। कितने बेहिस और बेगैरत लोग हैं। कोई इन बच्चों को नहीं रोक रहा। अब भी बहुत से बच्चे हाथों में पत्थर उठाए उसका निशाना ताक रहे थे। मैं बरक रफ्तारी से आगे बढ़ा और बूढ़ी औरत के लिए ढाल बन गया। बच्चों ने पत्थर फेंके जो मुझे काफी जोर से लगे थे। उसी वक्त बूढ़ी ने हाथ उठाए और जोर से चीखी, रुक जाओ, अभी खेलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने हैरत से ये अल्फाज सुने थे, लेकिन दूसरे लम्हे एक और अमल हुआ। कई दुकानदार डंडे लेकर दुकानों से नीचे कूदे, बच्चों की तरफ दौड़े। वो उन्हें गालियां बक रहे थे। बच्चे भर्रा मारकर भागने लगे। उन्हें भगाकर दुकानदार मेरी तरफ लपके। चोट तो नहीं लगी बाबू साहब, आपने बड़ी गलती की, आपको भला क्या मालूम, एक दुकानदार बोला। उसी वक्त बूढ़ी औरत ने हाथ चेहरे से हटाए, उठकर खड़ी हो गई। फिर उसने चारों तरफ देखा और करब से चीखी, हाय मेरे पीतम कहाँ गए, हाय मेरे बच्चे कहाँ गए, हाय पीतम, हाय पीतम। उसने उधर दौड़ लगा दी जिधर बच्चे भागे थे। आइए बाबू साहब, कहाँ चोट लगी आपको? गंभीर, कुर्सी नीचे रख। आइए बाबू साहब। एक दुकानदार ने मेरा बाजू पकड़ा और दुकान की तरफ ले चला। दूसरे ने दौड़कर कुर्सी दुकान के सामने रख दी। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, मेरे कहीं चोट नहीं लगी। मगर एक बात बताइए। आप बैठिए बाबू साहब। ओ हमीदू, जल्दी बोतल खोल, बोतल ला। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। आप मेहमान हैं पूरी बस्ती के बाबू साहब, खाली इमाम जी के मेहमान नहीं हैं। फिर आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आपने सांगी को बचाने के लिए बदन पर पत्थर खाए, ये बड़ी बात है। इमाम जी के मेहमान भी बड़े ही हो सकते हैं। उसी वक्त किसी ने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल मेरे हाथ में पकड़ा दी। सब मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे थे। मैंने बोतल से कुछ घूंट लिए, फिर कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
आप सब लोग देख रहे थे कि बच्चे उस बूढ़ी औरत को पत्थर मार रहे थे, लेकिन आपने उन्हें नहीं रोका। लेकिन मुझे पत्थर लगे तो आप सब दौड़ पड़े। हम मजबूर हैं। जब हम बच्चों को रोकते हैं तो सांगी बुरा मानती है, ज़ारो कतार रोती है कि हमने उसके बच्चों को डांटा है, वो उससे रूठ गए हैं। इस बात पर वो 2 दिन तक खाना नहीं खाती। बच्चे ही उसे मनाते हैं। क्या वो पागल है? इसकी भी एक कहानी है बाबू साहब। रमा कौर है इसका नाम, सिखनी है। इसका पति बालम सिंह दिल के दौरे से मर गया था। एक बेटा था पीतम सिंह, छोटी सी दुकान खोल रखी थी। 3 साल पहले की बात है कि शहर गया था माल लेने के लिए, फिर लौट कर नहीं आया। ये उसका इंतजार करती रही। फिर उसके गम में पगली हो गई। सारे बच्चों को पीतम पीतम कहती है। उनसे बहुत प्यार करती है। वो इसे पत्थर मारते हैं, खुश होती है, जख्म खाती है, हंसती है। छुट्टी होने से पहले स्कूल के पास आकर उनका इंतजार करती है। उनके सामने पागलपन की हरकतें करके उन्हें मतवज्जे करती है और पत्थर खाती है। ये है इसकी कहानी। मेरा दिल गम से डूब गया। मालिके कायनात, तेरी कायनात में कितने गम हैं, क्यों हैं, ये सिर्फ तू जानता है। कुछ देर के बाद मैंने कहा, उसके बेटे को तलाश नहीं किया गया? कौन सी कसर छोड़ी? मुखिया सिंह ने दिल्ली तक बात पहुंचाई। सिख सभा ने इसकी तलाश पर इनाम भी रखा, पर कहीं पता नहीं चला। मुखिया सिंह कौन है? नंबरदार है हमारी बस्ती के। रमा कौर कहाँ रहती है? पछाई पल्ले घर है इसका। घर के पास ही पीतम सिंह ने परचून की दुकान खोल रखी थी। वहीं मुखिया सिंह की हवेली भी है। पागलपन में इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं बाबू साहब, वो बेचारी तो नुकसान उठाने वालों में से है। आपने देखा नहीं, वो बच्चों से पत्थर खाकर भी खुश होती है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे इजाजत दें। मैंने उठते हुए कहा, खाना खाकर जाएं बाबू साहब, मुसलमान के घर का खाना होगा, इसकी चिंता ना करें। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं आप लोगों से बहुत मुतासर हुआ हूँ। बस्ती के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कोई किसी के घर आए, पूरी बस्ती का मेहमान होता है। सबको एक दूसरे की खबर रहती है। मसाली बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुश्किल से उन्होंने मुझे इजाजत दी। वाकई मैं यहाँ के माहौल से बहुत मुतासर हुआ था। इसके अलावा सांगी ने भी मेरे दिल पर बहुत असर किया था। माँ कायनात में कहीं भी हो, माँ होती है। सांगी माँ है। माँ की पुकार अल्लाह जरूर सुनता है। ऐ मालिके दो जहां, तू बेहतर जानता है। सांगी को इसका बेटा जरूर वापस दे देना। तू अजीम है। तुझसे दुआ है कि वो जिंदा हो। फिर मुझे अपनी माँ याद आ गई। मेरी माँ, मेरे लिए हाथ उठाई रखना। मैं सिर्फ तेरे लिए वापस आना चाहता हूँ, मेरे लिए जिंदा रहना। उस वक्त तक ये दुनिया मत छोड़ना जब तक मैं तेरे पास वापस ना आ जाऊं। मेरी आंखों से आंसू उबल आए। आंसू भी अल्लाह का कितना इनाम है। आंखें साफ हो जाती हैं, दिल साफ हो जाता है, यादें सुकून पा जाती हैं। मैं वापस आ गया। हिस्सेपुर वाकई मिसाली बस्ती थी। इंसान जहां भी होते हैं वहां मसाइल जरूर होते हैं। यहाँ भी मसाइल होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर सुकून था। दिन गुजर गया। आज शाम की चाय भी वही लड़का लाया था जिसने बाद में अपना नाम बुंदू बताया था। मैंने बुंदू से पूछा, बुंदू तुम सांगी को जानते हो? बुंदू हंस पड़ा। उसे कौन नहीं जानता, बड़ी मजे की है, हम लोगों के साथ खूब खेलती है। तुम भी उसे पत्थर मारते हो? हाँ, बड़ा मजा आता है। मोहल्ला पछाई पल्ला कहाँ है? नकई पुलिया की दूसरी तरफ, नंबरदार की हवेली के पास। सांगी भी वहीं रहती है। कल तुम मुझे उसके घर पहुंचा दोगे? हाँ, आप बोलोगे तो पहुंचा दूंगा। कल मंगल है, स्कूल पर नहीं आएगी। मंगल को स्कूल की छुट्टी होती है ना? स्कूल की छुट्टी मंगल को होती है? हाँ जी, ठीक है। फिर कल तुम मुझे सांगी के घर पहुंचा देना। बुंदू चला गया। मैं सोच में डूब गया। मुझे हिस्सेपुर पहुंचने की हिदायत बिला वजह नहीं हुई। कहा गया था कि चंदूसी चले जाओ, वहां किसी को तुम्हारी जरूरत है। किसे? क्या पेश इमाम नसीबुल्लाह को? रमा कौर को जिसका बेटा गुम हो गया है? मैं क्या कर सकता हूं इस सिलसिले में? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? मैंने अपने आप से सवाल किया। नसीबुल्लाह का कोई पता नहीं था। शकूर हर तरह मेरी खबरगिरी कर रहा था।
ہر ضرورت وقت پر پوری ہو رہی تھی۔ غرض یہ کہ دوسرے دن میں سانگی کے ہاں جانے کے لیے تیار تھا۔ بندو آ گیا تو میں حجرے سے باہر نکل آیا۔